السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف آپ کے سامنے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کریں گے محترم المقام جناب عامر نذیر بھائی مجاہد ختم نبوت کا مرزا غلام محمد قادیانی کے اخلاق فاضلہ پر ایک بہترین لیکچر۔ تو ناظرین، یہ لیکچر 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں لیکچر دیا گیا ہے، باقی 3 حصے سوال جواب پر مشتمل ہیں، اور یہ لیکچر 1 اکتوبر 2019 کو انصاف 1 واٹس ایپ گروپ میں دیا گیا تھا۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے محترم المقام مجاہد ختم نبوت جناب عامر نذیر بھائی کا مرزا غلام محمد قادیانی کے اخلاق فاضلہ پر لیکچر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے امر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ امر بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم کا رشتہ مانگا کیوں تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ رشتہ مانگ لیا ان سے؟ اس کی کیا وجوہات؟ یہ ذرا وضاحت فرما دیں، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تنویر بھائی، اصل میں مرزا صاحب نے پہلی شادی کی تھی حرمت بی بی کے ساتھ۔ وہ جوانی میں ان کی شادی ہو گئی، پھر نچاکی بھی ہو گئی، اور بیٹے ہونے کے باوجود ان کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ تھے، نہ ہونے کے برابر تھے ازدواجی تعلقات۔ ایک عرصہ دراز تک مرزا صاحب ایسے ہی سمجھیں کہ بغیر بیوی کے رہے۔ پھر اس کے بعد مرزا صاحب نے دوسری شادی جب کی تو چیمہ صاحب کے بقول وہ مجرد زندگی گزارنے کے بعد مرزا صاحب شادی کے قابل ہی نہیں تھے۔ ایسا سمجھ لیں کہ ختم ہو چکی تھی ان کی صلاحیتیں شادی والی۔ لیکن ہوا یوں کہ انہوں نے نسخے وغیرہ اس طرح کے استعمال کیے کہ ان کو پھر بڑی طاقت آئی، اور یہ تیسری شادی کے بھی در پہ ہو گئے۔ تو یہ تیسری شادی کے لیے رشتہ مانگتے تھے، ان کی ضرورت تھی شادی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے امر بھائی، بہت شکریہ جواب دینے کا۔ ایک اور میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے امر بھائی کہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم کا رشتہ کب، کیسے اور کن حالات میں مانگا تھا، کس طریقے سے مانگا تھا؟ مطلب محمدی بیگم کا رشتہ جو مانگا تھا مرزا صاحب نے، یہ اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، بہت شکریہ، تاکہ مجھے ذرا سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ بہت شکریہ امر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تنویر چینا بھائی، آپ نے پوچھا ہے کہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم کا رشتہ کب، کیسے اور کن حالات میں مانگا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں مختصراً کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کا ایک چچا زاد بھائی تھا، غلام حسین اس کا نام تھا۔ وہ گھر سے گیا، واپس نہیں آیا، گم ہو گیا۔ 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، اب یقین ہو گیا کہ وہ فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی اس کی زمین لینا چاہتی، ظاہر ہے خامند کی زمین اس کی بیوی کو ملنا تھی، لیکن مرزا صاحب کا کیونکہ وہ چچا زاد بھائی لاوارث تھا، یعنی اس کی اولاد نہیں تھی، تو جو لاوارث ٹھیری ہوتی ہے، لاوارث زمین ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی آج بھی چچا زاد بھائیوں کی طرف لوٹتی ہے۔ وہ زمین مرزا صاحب کے دستخطوں کے بغیر اس کی بیوی کو نہیں مل سکتی تھی۔ وہ اس کی بیوی کا بھائی تھا احمد بیگ، جو محمدی بیگم کا شوہر تھا۔ وہ آیا اس کام سے مرزا صاحب کے پاس کہ یہ زمین جو آپ کے چچا زاد بھائی کی ہے، اس کی بیوہ کو تبھی مل سکتی ہے، آپ دستخط کریں۔ مرزا صاحب نے دستخط کرنے کی اجرت یہ مانگی کہ تم مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے۔ یہ ہے خلاصہ اس کہانی کا۔ جی السلام علیکم عامر نذیر صاحب۔ عامر نذیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس مسئلے کے اس پہلو کو، جو معاشرتی پہلو ہے، اس کو اجاگر کیا ہے، نہیں تو عموماً اسے پیش گوئیوں کی دھول میں گما دیا جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے
कि जितने कम वक्त में जितना कम्प्रीहेंसिवली आपने किया और तमाम जो आपने रेफरेंस दिए हैं वो मिर्ज़ा साहब की अपनी तहरीरों से हैं। मैं आमिर साहब कुछ सवालात करना चाहूँगा, 3-4 मेरे सवाल हैं, तो मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि मैं अलग-अलग ऑडियो में कर दूँ ताकि सहूलत रहे। तो पहला सवाल मेरा ये है आमिर साहब, इसी ऑडियो में मैं करता हूँ कि ये जो मिर्ज़ा साहब ने इज़्ज़त बीबी की तलाक का कहा अपनी बहू का, तो क्या फिर ये तलाक हुई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुक्रिया इंजीनियर साहब। आपका सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जो इज़्ज़त बीबी का तलाक का उनको कहा था, धमकी दी थी इज़्ज़त बीबी के वालिदैन को, अली शेर बेग और उसकी बीवी को, फजल की सास और ससुर को, अपने समधी को और समधन को, क्या ये तलाक हुई? बिल्कुल हुई। फजल ने वहाँ से तलाक शर्तिया लिख कर भेज दी। वो जम्मू में मुलाजम था। ये मिर्ज़ा साहब जो 200 देहातों के मालिक और जगीरदार आपको बताए जाते हैं ना, इनका बेटा 20 रुपए पर मुलाजम था वहाँ जम्मू में। हकीम नूरुद्दीन उसको कहलाता मुलाजम। बहरहाल वो वहाँ से उसने शर्तिया तलाक लिख कर भेज दी कि अगर ये मोहम्मदी बेगम का निकाह दूसरी जगह करें, और तो जिस दिन मोहम्मदी बेगम का निकाह होगा उसी दिन से मेरी बीवी पर 3 तलाकें। तो तलाक हो गई। जी दूसरा सवाल आमिर साहब मेरा ये है कि जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा या सुना है, तो उसमें ये है कि इस तलाक के साथ मिर्ज़ा साहब ने अपनी जो पहली ज़ौजा थी हुर्मत बीबी, उनकी तलाक को भी मशरूत कर दिया था कि वो चूँकि बेटों की हिमायत कर रही हैं तो मैं उन्हें भी तलाक दे दूंगा। तो दूसरा मुझे पूछना ये है कि क्या उस मामले में क्या हुआ? क्या जी इंजीनियर साहब, आपने पूछा है कि जो मिर्ज़ा साहब की पहली बीवी थी हुर्मत बीबी, जो मिर्ज़ा साहब के 2 बेटों की वालदा थी, उसको भी मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि जिस दिन मोहम्मदी बेगम का निकाह होगा उसी दिन तुझ पर तलाक। बिल्कुल हो गई थी। उसको भी तलाक मिर्ज़ा साहब ने दे दी थी। हालांकि वो तलाक लेना नहीं चाहती थी और वो कहती थी कि मुझे अज़दवाजी हुकूक भी मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन जैसा मैंने ऊपर अर्ज किया ना कि पत्थर का तो कुछ नहीं गया, शीशा टूट गया। कई शीशे तोड़े मिर्ज़ा साहब ने। ये इनके मसीह मऊद हैं और इनके रहमतुल लिल आलमीन हैं मिर्ज़ाइयों के। अल्लाह ताला इनको अक्ल और समझ दे। तीसरा सवाल आमिर साहब मेरा ये है कि जिस ज़माने में ये सब कुछ हो रहा था तो मिर्ज़ा साहब यकीनन इस्लामिक फ़िक़ा को फॉलो करते थे। तो इस्लामिक फ़िक़ा में मौरूसी जायदाद में से अपने बेटे को आग किया जा सकता है? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या नहीं? एक कमाई जायदाद है वो अलहदा बात है, लेकिन जो मौरूसी चलती आ रही है उसमें से क्या अपने बेटे को तलाक दी जा सकती है? आग किया जा सकता है, सॉरी मैं तलाक कह गया। तो ये ज़रा वजाहत कीजिए। जी इंजीनियर साहब, आपने पूछा है कि मिर्ज़ा साहब ने जो अपने बेटे को जायदाद से आग किया, क्या वो शरई तौर पर जायज़ था? बिल्कुल नाजायज़ था। बिल्कुल जायज़ नहीं है। शरई तौर पर अल्लाह ताला ने जिसको वारिस बनाया है जिस जायदाद का, आप उसको उससे लावारिस नहीं कर सकते। तो ये शरई तौर पर हकदार था, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने गैर शरई हरबा किया और अपना बाग अपनी ही बीवी के आगे रहन रख दिया। ये मिर्ज़ा साहब इनके मसीह मऊद हैं। ज़रा देखिएगा इनके काम काज। अपना ही बाग अपनी ही बीवी नुसरत जहां बेगम के आगे 5,000 रुपए के बदले रहन रख दिया। 4,000 के जेवरात लिए और 1,000 के नोट लिए और वो बाग अपनी बीवी के आगे रहन रख दिया। क्यों? जाली रजिस्ट्री तैयार करवाई, जाली स्टाम्प तैयार करवाया और कहा कि मैं रहन रख रहा हूं, इसलिए कि मेरी पहली बीवी की औलाद फजल और सुल्तान इससे हिस्सा ना पा सके। जी आमिर साहब, मेरा चौथा और अब तक का आखिरी सवाल ये है कि ये जो मिर्ज़ा साहब के साहबजादे थे फजल अहमद, तो क्या इन्हें फिर मिर्ज़ा साहब की जायदाद से हिस्सा मिला था?
जिसे उन्होंने मशरूत कर दिया था ना कि मैं आग कर दूंगा। तलाक तो एक एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट जो है वो आग करने का था। तो क्या फिर मिर्जा साहब ने उन्हें अपनी जायदाद में से हिस्सा दिया या नहीं दिया? तो ये सर अभी तक मेरे 4 सवाल हैं। हो सकता है मैं आपको फर्दर भी तकलीफ दूं कि इन सवालों के जब जवाब आए तो कुछ और अगर आए तो ये फिर मैं वो पूछ लूँगा। जज़ाकल्लाह। जी इंजीनियर साहब, आपने पूछा कि जो फजल था उसको जायदाद फिर मिली या नहीं मिली। मिर्जा साहब ने उसको थ्रेट किया था कि मैं जायदाद से तुम्हें आग कर दूंगा। तो जैसा मैंने ऊपर वाली ऑडियो में बयान कर दिया है कि मिर्जा साहब ने तो बाग रहन रख दिया था अपनी बीवी के आगे, लेकिन हुआ ये कि फजल की मौत हो गई। फजल मिर्जा साहब की जिंदगी ही में फौत हो गया और मिर्जा साहब ने उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा था। ये भी आपको शायद इल्म नहीं होगा कि मिर्जा साहब के सामने उसकी चारपाई ला के रखेगी, मिर्जा साहब ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा, इसी वजह से कि वो मिर्जा साहब को झूठा समझता था मिर्जा साहब के तमाम दावों में। तो बहरहाल मिर्जा साहब ने तो उसको गैर शरई तरीके से एक हरबे से जायदाद से आग भी करने की कोशिश की लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो ये सवाल ही खत्म हो गया कि उसको जायदाद मिलेगी या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमिर नज़ीर भाई, सवाल आपसे ये पूछना था कि मिर्ज़ा साहब को अगर खुदा की तरफ से ये बताया गया था कि ये जनाब तेरा निकाह हो चुका है आसमान पर, तो ये इतना एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये कहना कि मोहम्मदी बेगम से निकाह ना हुआ तो जनाब मेरा बेटा जो है वो तलाक दे देगा फलां को, और वो सबको जलील करना, ये मिर्ज़ा साहब ने किस वजह से किया? क्या मिर्ज़ा साहब को यकीन नहीं था अपनी उस पेशगोई पर या मिर्ज़ा साहब की इस्लाम पर कि मेरा निकाह जो है आसमान पर पढ़ाया गया है? ये ज़रा रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उसामा भाई, आपने जो सवाल पूछा है कि मिर्जा साहब को किस हद तक यकीन था उस पेशगोई का जो उनको उनके खुदा ने दी थी बकौल उनके इल्हाम के जरिए से, और इतनी यकीन दहानी करवाई कि जमीन आसमान की बातें टल जाएं, ये निकाह नहीं टलेगा, तकदीर मुबरम वगैरह। फिर मिर्जा साहब ने ये सारे काम क्यों किए? इसका जवाब ये है कि हमारी नज़र में मिर्जा साहब किसी दीन को नहीं मानते थे, किसी फिका को नहीं मानते थे, किसी इल्हाम को नहीं मानते थे, किसी कुरान को नहीं मानते थे, किसी शरीयत को नहीं मानते थे। उसका सबूत ये है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह के साथ 1907 में जब मिर्जा साहब ने आखिरी फैसला इश्तिहार से पहले जो गुफ्तगू की हकीकतुल वही छपने के दिनों में कि कसम खाओ, उन्होंने कहा आप कसम खाओ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने कहा मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मिर्जा साहब की तरफ से जवाब आया हम भी कसम खाएंगे, जब तुम कसम खाओगे हम भी कसम खाएंगे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने कहा मिर्जा साहब आप तत्ते तवे पर भी बैठ जाए, मैं आपकी कसम तो मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी नजर में आप दहरिए हैं, आपका किसी दीन से, किसी फिका से, किसी शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। तो जो बंदा कोई ईमान ही नहीं रखता, जिसके अंदर कोई ईमान है ही नहीं, उसकी कसम काहे की? मैं आपकी कसम नहीं मानता, मैं कसम देने के लिए तैयार हूं, आप पहले बताओ अजाब क्या होगा, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। जी, और हजरत ये मिर्ज़ा साहब ने ये भी कहा ना कि ये तकदीर मुबरम है, ये तब्दील नहीं हो सकती, ऐसी तकदीर है जो तब्दील नहीं हो सकती। तो ये तब्दील जो तकदीर नहीं हो सकती थी, इसके ऊपर मिर्ज़ा साहब को यकीन इतना ही था कि जनाब वो मिर्ज़ा साहब ने फलां को भी तलाक दिलवा दी और फलां की भी जनाब जलील करके रख दिया पूरे ख़ानदान को। ये थोड़ी रहनुमाई फरमाए, जज़ाकल्लाह। जी उसामा भाई, आपके दूसरे सवाल का जवाब भी वही है कि जब मिर्जा साहब किसी दीन को मानते ही नहीं थे, ना किसी शरीयत को मानते थे, तो ऐसे लोगों के ये अल्फाज जो तकदीर मुबरम वगैरह और इल्हाम और खुदा की बातें और ये सारी चीज़ें जितने हैं, ये ऐसे है जैसे एक ज़रबुल मिसल है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो मिर्जा साहब के ये अल्फाज और ये सारा जो इल्मुल कलाम था उनका, इसका उनके जहन से कोई लेना देना नहीं है। जहनी तौर पर जैसा मैंने कहा कि उनका किसी दीन से, किसी शरीयत से कोई लेना देना नहीं था, फारिग थे वो। ये सिर्फ लोगों को बताने की बातें हैं, तकदीर मुबरम वगैरह। जिस बंदे को ये यकीन हो कि ये तकदीर मुबरम है, कभी वो इस तरह की हरकतें करता है, ब्लैकमेलिंग बहू की, बेटे की, उसकी समधी की, समधन की, इस तरह भी कभी हुआ है? अपने बेटों को जायदाद से आकर धोखे से
जाली तरीके से रजिस्ट्रियां बनवा के। ये सारे काम इसीलिए किए कि अंदर से मिर्जा साहब किसी बात को नहीं मानते थे। वो तो अपना पूरा चारा कर रहे थे कि ये बात प्रूव हो जाए, ये लोग डर के मुझे रिश्ता दे दें। प्रेशराइज इतना किया उनको कि ये अंदर से खौफजदा हो जाए, मुझे रिश्ता दे दें, मेरी बात सच्ची साबित हो जाए, मैंने रूप धारा हुआ है वो सच साबित हो जाए लोगों की नजर में। जी आमिर नजीर साहब, जवाब देने का बहुत शुक्रिया, बहुत क्लैरिटी हासिल हुई उससे। अब सर एक पता नहीं ये ज़िमनी सवाल है या मेन सवाल बनता है कि इस सारे एपिसोड के दो मेन कैरेक्टर हैं, एक मिर्ज़ा साहब हैं और दूसरा मोहतरमा मोहम्मदी बेगम है। तो जैसे कि आपने बयान किया 1891 के करीब का ये वाक़या है, तो उस वक्त अगर मिर्ज़ा साहब की अपनी तहरीरात के मुताबिक देखें तो उनकी उम्र जो है वो 51 साल बनती है, और अगर जो जमात क्लेम करती है उस लिहाज से देखें तो वो 56-57 साल के हैं। तो अब उन्हें जवान तो नहीं कहा जा सकता, वो डेढ़ उम्र या बूढ़ा ही कहेंगे। तो ये तो मिर्ज़ा साहब की उम्र होगी। कुछ अंदाजा है कि उस वक्त मोहम्मदी बेगम साहिबा की उम्र तकरीबन क्या थी? जी इंजीनियर साहब, आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि ये सवाल अगर किसी साथी ने करना है तो सिर्फ इसके माशरती पहलू को मद्देनजर रखकर ही किया जाए, मिर्जा साहब के अखलाक को मद्देनजर रखकर ही किया जाए, ना कि पेशगोई को जेर बहस लाया जाए कि पेशगोई सच्ची साबित हुई या झूठी साबित हुई। पेशगोई पे हम हजारों दफा डिस्कस कर चुके हैं कि ये झूठी साबित हुई है, और ऐसे पिटी है हिंदुस्तान में कि वो किसी शायर की जुबान में इस नक्शे पा के सजदे ने इतना किया जलील, हम कूचाए रकीब में भी सर के बल चले। मिर्जा साहब सर के बल चले हैं इस पेशगोई को पूरा करने के लिए, लेकिन इस पेशगोई ने बड़ा जलील किया है, बड़ा रुस्वा किया है। तो पेशगोई पर बात नहीं होनी चाहिए। सवाल आपको करना हो तो ऐसे ही जैसा आपने हुक्म किया है मैं इंशाल्लाह भी जवाब अर्ज करता हूँ कि जो मोहम्मदी बेगम साहिबा थी उनकी उम्र क्या थी, और मिर्जा साहब की उम्र तो इनके कागजात के मुताबिक 56-57 साल बनती। मिर्जा साहब कहते हैं कि जब मैंने ये पेशगोई की थी तो बच्ची अभी नाबालिग थी। 1887 के लगभग मिर्जा साहब ने ये पेशगोई की है। उस वक्त बच्ची नाबालिग थी, 7-8 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, तभी नाबालिग थी ना। तो उसकी पैदाइश 80 के लगभग बनती है। आप खुद गैस कर लें, मिर्जा साहब की अगर 35 है और उसकी 80 है तो वो कितने साल, 45 साल छोटी थी मिर्जा साहब से। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।